students, so today we'll try to finish this chapter, and before we go ahead on the next topic, I have received a few doubts from you guys on these 4 questions. So I'll first take those doubts, then we'll do question number 5, and then we'll move ahead on this particular chapter. Fine? So doubts. So the doubts are all from question number 4. The question is find the value of x. Okay? और उसका question number 4. The question number 4 is log of 0.1 to the base x is -1. तो क्या करना है फिर यार यहाँ पे x raised to -1 is 0.1. ये बेस है, ये इधर आ जाएगा, करेक्ट है ना? तो how can we write this x raised to -1? What is 0.1? 0.1 is 1/10. हाँ कि नहीं? जब मैंने बोला है जब भी पॉइंट में दिखे उसको फ्रैक्शन में लिख दो. रैशनल इरैशनल नंबर में हमने ये पढ़ा है कैसे करते हैं. yes or no? This is nothing but 10 raised to -1. As the powers are same, the bases will also be same. खत्म. yes? इसी का क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है किसी ने. log of 8 to the base x is equal to 6. तो ये क्या हो जाएगा? x raised to 6 is equal to 8. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना? थोड़ा सा मैनिपुलेशन लगेगा यहाँ पे, ठीक है. x raised to 6 is equal to 2 raised to 3. Can I write it like this? 8 is nothing but 2 raised to 3. Yes? Can I write it like this? 2 raised to 6 लिख देता हूँ इसको. Yes? Raised to 1/2 चलेगा क्या? See? What is 2 raised to 6 raised to 1/2? 2 raised to 6 into 1/2 which is 2 raised to 3. So 2 raised to 3 को मैंने ऐसे लिख दिया. Yes or no? अब इसको लिखूंगा 2 raised to half raised to 6. अरे ये हाफ को इधर लिख दो, 6 को इधर लिख दो, एक ही बात है. yes or no? अब देखो ये पावर और ये पावर सेम हो गया. सो x कितना हो गया? 2 raised to half. दैट मीन्स √2. यस, ये छोटा सा वहां पे मैनिपुलेशन करना पड़ा. क्लियर है? आंसर्स चेक करो, जिनको आया वो लोग आंसर्स चेक करो, है ना. 6th क्वेश्चन. व्हाट इज द 6th क्वेश्चन? बोल रहे हैं 10 raised to -3 is equal to, नो सॉरी गलत क्वेश्चन मैंने कॉपी कर लिया. क्वेश्चन नंबर 6 says log 10 to the base x is equal to half. Interesting. How can we write this? X raised to half is equal to 10. yes or no? X raised to half is equal to 10. ये बेस है, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा. yes? मतलब स्क्वायर रूट ऑफ x is equal to 10. Can I write here 100 raised to half? अरे 10 मतलब 100 raised to half होता है ना. स्क्वायर रूट ऑफ 100, स्क्वायर रूट ऑफ 100 is 10. हाँ कि नहीं? सो देखो पावर सेम, तो x कितना हो जाएगा? 100, है ना. ये 3 डाउट्स पूछे थे, तो ये तीनों बता दिया. क्लियर है? आई होप समझा है अच्छे से. एंड अभी क्वेश्चन नंबर 5 जो चैलेंज बोल के भेजा था, सिर्फ 1-2 लोगों ने मुझे रेस्पॉन्स भेजा है. यस, गिवन इफ log of a to the base 10 is equal to m, then express the following in terms of a. देखो पहला 10 raised to 3m को a के टर्म्स में लिख के बताओ. ये गिवन है. सो हाउ कैन आई राइट दिस? 10 raised to m is equal to a. ये बेस है 10, ये m इधर, a इधर. So we know that 10 raised to m is equal to a. This is given already. अब उन्होंने बोला है 10 raised to 3m का वैल्यू निकालो. So can I write it as 10 raised to m raised to 3? Yes. What is 10 raised to m? a. तो ये आ गया a raised to 3. समझ में आया? Yes. अच्छा और एक देखो, 10 raised to m plus 2 क्या होता है? 10 raised to m plus 2 10 raised to m into 10 raised to 2. a raised to m plus a raised to n is a raised to m into a raised to n.
a raised to m into a raised to n is a raised to m plus n, करेक्ट। अब इसके बदले हम लिख देंगे a, क्योंकि वो तो गिवन है 10 raised to m is equal to a into 100, तो ये कितना हो गया 100a, करेक्ट। सो इन टर्म्स ऑफ a लिखो बोला है, सो 10 raised to m plus 2 is nothing but 100a, है ना। वैसे ही नेक्स्ट वाला है 10 raised to 5m minus 3, राइट दिस इन टर्म्स ऑफ a, तो मैं इसको लिखूंगा 10 raised to 5m divided by 10 raised to 3, a raised to m upon a raised to n is a raised to m minus n, हाँ कि नहीं। ये हो गया 10 raised to m raised to 5 upon 10 raised to 3, a raised to 5 upon 10 raised to 3, यस इसकी वैल्यू है a, तो डाल दो, आ गया आंसर, दिस इज माय आंसर। यू हैव टू एक्सप्रेस दिस इन टर्म्स ऑफ a, तो देखो a इज इन टर्म्स ऑफ a, हमने उसको लिख दिया, दैट्स इट, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। आई बात समझ? यस, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द मेन पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज लॉज ऑफ लॉगरिथम। जैसे लॉ ऑफ इंडाइसेस होता है वैसे लॉज ऑफ लॉगरिथम्स। कैसे होता है, क्या होता है? फर्स्ट, log of a to the base a is equal to 1, ये log of a to the base a is equal to 1, मतलब क्या है इसका? एग्जाम्पल्स देता हूं यहां पे चलते चलते बहुत सारे। यस, log of 2 to the base 2 कितना होगा 1, log of x by 2 to the base x by 2 कितना होगा 1, log of 10 to the base 10 कितना होगा 1, समझ में आ रहा है? ठीक है, so log of anything to the base the same number is equal to 1, जैसे anything raised to 0 1 होता है वैसे, फाइन। सेकेंड, प्लीज अब ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट लॉज है सारे। log of m into n is equal to log of m plus log of n, ऐसे होता है। log of m into n is equal to log of m plus log of n, या मल्टीपल रहे बहुत सारे, जैसे log of a into b into c into d ब्रैकेट में ऐसे है। यस, तो आई कैन राइट इट एज log of a plus log of b plus log of c plus log of d, और टू द बेस सेम नंबर, यहाँ a है तो यहाँ भी a, यहाँ भी a, यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, तो सबका बेस सेम रहेगा, है ना। और एक चीज बता देता हूं, अब से अगर बेस में कुछ भी लिखा नहीं होगा तो टू द बेस 10 होता है, अगर बेस में कुछ भी लिखा नहीं है तो टू द बेस 10 होता है। यस, इस लॉ के एग्जांपल्स देखो। log of 35 ऐसा सपोज, तो हाउ कैन आई राइट इट? आई कैन राइट इट एज log of 7 into 5। व्हाट इज log of 7 into 5? log of 7 plus log of 5, सब जगह पे टू द बेस 10 ऑटोमेटिकली है, तो हम लिखेंगे नहीं उसको बार बार, ठीक है ना, हम लोग उसको बार बार लिखेंगे नहीं, सो विल अज्यूम कि है वहां पे, क्लियर है। और उल्टा भी ट्रू है, जैसे अनदर एग्जांपल, अगर ऐसा दिया है log of 3 plus log of 2, तो आई कैन राइट इट एज log of ब्रैकेट में 3 into 2 which is nothing but log of 6, है ना। तो किसी का सम अगर है तो उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, प्रोडक्ट अगर है तो उसको सम में कन्वर्ट कर सकते हो, एंड हेंस दिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ, देखो प्रोडक्ट है उसको सम में कन्वर्ट किया, सम है तो उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, सो दिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम्स, क्लियर है।
यस और तो बहुत एग्जांपल्स आने वाले हैं। एक लॉ कभी यूज नहीं होगा, एक साथ बहुत सारे लॉ यूज होता है, ठीक है। सेकेंड नहीं थर्ड लॉ, थर्ड इज कॉल्ड एज कोशेंट लॉ, QUOTIENT, कोशेंट लॉ। ये भी इजी है, देखो log of m upon n is equal to log of m minus log of n। समझ में आ रहा? यस बच्चों ये चीज अलग है, log of m upon log of n, ये दोनों सेम नहीं है। ये है log of m by n, ये है log of m upon log of n, तो ये तो अलग है। सो दिस इज नॉट इक्वल टू log m माइनस log n, ये वाला रूल ऐसा नहीं होता, ये इक्वल नहीं होते। log m by n इक्वल रहेगा, है ना। एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं लिखता हूं log of 3 by 4, तो इसका मतलब होगा log of 3 माइनस log of 4, सब जगह टू द बेस 10, अगर मैंने बेस नहीं लिखा तो टू द बेस 10 होगा, ठीक है क्या। या उल्टा भी लिख सकते हो, जैसे यहां लिखा है log of 5 माइनस log of 7, तो इसका मतलब क्या होगा log of 5 डिवाइडेड बाय 7, 7 डिवाइडेड बाय 5 नहीं, 5 डिवाइडेड बाय 7। सो दिस इज कॉल्ड एज कोशेंट लॉ। यस अगर डिवीजन फॉर्म में है तो सब्ट्रैक्ट होता है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है तो ऐड होता है। Getting it? Yes. The fourth one, बस ये last. It is called as power law. Very important. Power law. It says that log of m raised to n is equal to n log m. ये जो n है ना, इसको इधर लेके आ जाओ, पावर को हटा दो और पहले बाहर लेके आओ। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल log of 2 raised to 3 is nothing but 3 log 2, इसको इधर लेकर के आ जाओ, that's it। yes log of 25 को मैं ऐसे लिख सकता हूं log of 5 का स्क्वायर, 25 को मैंने 5 का स्क्वायर लिख दिया, which is nothing but 2 log 5, है ना। log of अंडर रूट 3 तो मैं ऐसे लिख सकता हूं log of 3 raised to half, रूट 3 को लिखा 3 raised to half, which is nothing but half log 3, ये हाफ इधर आ जाएगा, सो हाफ log 3। समझ में आ रहा है पावर लॉ? यस, तो दिस इज हाउ द पावर लॉ वर्क्स। उल्टा भी चलेगा, उल्टा भी चलेगा, जैसे 3 log 2 दिया है तो ये 3 को इसका पावर बना दो, log of 2 raised to 3, एक ही बात है, which is nothing but log 8। तो कभी ऐसे करना पड़ेगा, कभी ऐसे करना पड़ेगा, है ना। तो दोनों भी करते आना चाहिए, लॉ तो एक ही है। आ रही है बात समझ? यस, सो दैट इज द पावर लॉ। सिर्फ पावर को उठा के पहले लेकर आओ, या अगर लॉग के पहले कुछ लिखा है तो इसकी पावर पे उसको लेके जा सकते हो, पूरा इसकी पावर पे लेके जाना है। क्लियर है? एंड एक अभी ये फोर्थ वाला फिफ्थ वाला जो है वो लॉ नहीं है कोई, बट कुछ चीजें हैं वो याद रखो। log of 1 is 0, log 1 to the base 10 is 0, log 1 is 0, log of 100 is 2, एक सेकेंड, log of 10 is 1, log 1 0, log 10 is 1। देखो log 10 to the base 10, हाँ कि नहीं, log 10 मतलब क्या, log 10 to the base 10, और हमने लॉ देखा है log a to the base a is 1, so log 10 to the base 10 is 1। yes, log of 100 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, log of 10 का स्क्वायर, हाँ कि नहीं, ये 2 इधर आ जाएगा, which is nothing but 2 log 10, पावर लॉ यूज किया। what is log 10? 1, so 2 into 1 which is 2, तो log of 100 is 2। what is log of 1000? देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ
log of 10 रेज टू 3, 1000 को लिखा 10 रेज टू 3, है ना, और पावर लॉ यूज करूं तो 3 इधर आ जाएगा, 3 log 10, और log 10 क्या होता है 1, तो 3 into 1 which is 3. देखो log 10 to the base 10 is 1. यहां सब जगह base 10 है. अब मैं base 10 लिखूंगा नहीं हमेशा, we'll assume कि base 10 है unless and until it is given, है ना. log of 10,000 कितना होगा बताओ, 4. yes, this is as good as log of 10 raised to 4 which is 4 log 10 which is nothing but 4, है ना. तो ये चीज याद रखना है. क्या क्या, log 1 0 होता है, log 10 1 होता है, log 100 is 2, log 1000 is 3 and so on so forth. Clear है? Yes. Let us solve a few questions on logarithms and the chapter will end. छोटा सा है, सिंपल सा है, इंडाइसिस पे बेस्ड है. ठीक है, चलो लेट्स सॉल्व. एग्जाम्पल, सिंप्लीफाई या इवेल्युएट. सिंप्लीफाई बोलेंगे. सिंप्लीफाई दिस 3 minus 2 log 5 plus 1/3 log 8, इसको सिंप्लीफाई करने बोला. सो देखो, छोटा बनाना है. सिंप्लीफाई मतलब 3 टर्म्स है, उसको छोटा बनाओ. सो इसको 3 रहने दो फिलहाल, है ना. कैन आई राइट दिस एज, पावर को यहां लेके जाओ, log of 5 का स्क्वायर, पावर लॉ यूज किया, 2 को इधर लेके चले गए, 5 का पावर बना, प्लस log of 8 रेज टू 1/3, इसको भी यहां लेकर के गए. करेक्ट. नाउ दिस इज इक्वल टू 3 minus log of 25 plus log of what is cube root of 8, 2. हाँ कि नहीं, क्यूब रूट ऑफ 8 is 2. तो देखो यार, अभी ये भी log है, ये भी log है, तो क्या मैं इसको भी log में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या? यस, आई कैन राइट 3 एज log 1000. हाँ कि नहीं, अभी सीखा. 3 मतलब log of 1000, log of 1000 का वैल्यू 3 होता है, इसीलिए तो बोला कि ये याद रखना, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, वो होता है. करेक्ट. माइनस log of 25 प्लस log of 2, है ना. अब देखो इसको सॉल्व करते हैं पहले. दिस इज log of m माइनस log of n. सो कैन आई राइट दिस एज log of 1000 अपॉन 25, है ना, प्लस log of 2 एज इट इज. करेक्ट. ये कितना होगा देखो, 25 1 जा 4 जा 40. सो ये हो गया log of 40 प्लस log of 2. हाँ कि नहीं. This is log m plus log n, which is nothing but log of m into n, which is log 80. This is the answer. आ रही है बात समझ? धीरे धीरे ये परफेक्ट होगा. जितना प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट होता जाएगा. नॉट टू वरी अबाउट इट, है ना. फिलहाल मेरे साथ साथ करते रहो, है ना. साथ में करो, साथ में, मतलब ये सम मैंने सिखा दिया, अभी खुद से करो इसको एक बार. ठीक है. तो हर सम पहले देख लो और फिर खुद से सॉल्व करो. पहले देख लो फिर खुद से सॉल्व करो. ऐसे करते रहना है. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. इवेल्युएट. इवेल्युएट मतलब एक कुछ दिया है, उसका वैल्यू निकालो. हाफ log 25 माइनस 2 log 3 प्लस log 18 ऐसे दिया है. बोले इसका वैल्यू निकालो. ठीक है. तो सबसे पहले ये हाफ को इस इधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा log of 25 रेज टू हाफ माइनस ये 2 को इधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा log of 3 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा log of 18. करेक्ट. 18 को ऐसे ही रहने दो फिलहाल. नाउ व्हाट इज 25 रेज टू हाफ? 5. हाँ कि नहीं. 25 रेज टू हाफ इज 5, रूट ऑफ 25.
माइनस log ऑफ 3 का स्क्वायर 9 प्लस log ऑफ 18। ठीक है, अब पहले इसको सॉल्व करो। log m माइनस log n इज इक्वल टू log ऑफ m अपॉन n प्लस log ऑफ 18। यस, ये डिवाइड हो जाएगा कोशेंट लॉ। ये हो गया m, ये हो गया n अभी। सो दिस इज नथिंग बट log ऑफ m प्लस log ऑफ n इज log ऑफ 5/9 इंटू 18। m इंटू n प्रोडक्ट लॉ, यस और नो? 9 1s are 9 2s are। So log of 5 into 2 is 10। What is the value of log 10? 1। तो इसका आंसर हो गया 1। यस, ये देखो सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस एज अ सिंगल लॉगरिथम। 2/3 log 8 प्लस 6 log cube root of 2 minus half log 1/9। हाउ डू वी सॉल्व दिस? पहले सबसे पहले इसको इधर लेके जाओ, तो मैं इसको लिखूंगा log ऑफ 8 raised to 2/3 प्लस इसको लिखूंगा log ऑफ, ये 6 को रहने दो, पहले इसको सिंप्लीफाई कर दो, 2 raised to 1/3, हाँ कि नहीं? और ये 6 को इधर लेकर के जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? raised to 6। यस और नो? क्यूब रूट ऑफ 2 को लिखा 2 raised to 1/3 और ये 6 को यहाँ लेकर के गया तो ये हो जाएगा raised to 6 माइनस ये हो जाएगा log ऑफ 1/9 raised to हाफ। ये हाफ इधर चला जाएगा, हाँ कि नहीं? ये हाफ उधर। नाउ व्हाट इज दिस? log ऑफ 8 raised to 1/3 का स्क्वायर, ये तो इंडाइसिस का मेथड है, प्लस log ऑफ 2 raised to 1/3 into 6 माइनस log ऑफ व्हाट इज 1/9 raised to हाफ? 1/3। अरे 1 का रूट और 9 का रूट, 1 का रूट इज 1, 9 का रूट इज 3। यस और नो? करेक्ट। नाउ log ऑफ व्हाट इज 8 raised to 1/3? 2 और ये स्क्वायर एज इट इज, प्लस log ऑफ 3 1s are 3 2s are, सो ये वापस 2 का स्क्वायर माइनस log ऑफ 1/3। यस, ये आ गया देखो log 4 प्लस log 4 माइनस log ऑफ 1/3। व्हाट इज log 4 प्लस log 4? log ऑफ 4 into 4, यस, माइनस log ऑफ 1/3। log m प्लस log n इज log ऑफ m into n, है ना? तो ये हो जाएगा log ऑफ 16 माइनस log ऑफ 1/3, हाँ कि नहीं? अब ये क्या हो जाएगा? log 16 डिवाइडेड बाय 1/3 विच इज नथिंग बट log ऑफ 16 into 3, ये 3 ऊपर जाएगा, करेक्ट, विच इज इक्वल टू log ऑफ 48। सो दिस इज द सिंप्लीफाइड वर्जन। तो ये इतना डेंजरस जो दे रखा है इन्होंने, इसका मतलब क्या है? log 48। समझ में आ रहा है? हर स्टेप समझो, एवरी स्टेप यू नीड टू अंडरस्टैंड केयरफुली, ठीक है ना? चलो एक और लेते हैं, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई 2 log 3 माइनस हाफ log 4 प्लस 1/4 log 81। ठीक है, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, करेक्ट। सो log ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस log ऑफ 4 raised to हाफ प्लस log ऑफ 81 raised to 1/4। log ऑफ 9, 3 का स्क्वायर 9, log ऑफ 4 raised to half is 2 square root of 4 plus what is 81 raised to 1/4? 3 into 3 into 3 into 3 is 81। yes,
तो ये आ जाएगा log ऑफ, करेक्ट। अब इसका क्या होगा, log ऑफ 9/2, यस और नो। log m माइनस log n इज log ऑफ m बाय n प्लस log ऑफ 3, करेक्ट, which is nothing but log of 9/2 into 3. log m plus log n is log of m into n. 9 3s are 27, तो ये आ जाएगा log of 27/2. That's it, that is your answer. क्लियर है? हर एक सम में सेम चीज कर रहे हैं हम, बार बार। ओके, चल एक और बोल रहे हैं इवेल्युएट मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो सेम टू सेम सॉल्व करना है एक्चुअली हमको। log ऑफ 3/4 प्लस log ऑफ 4/5 प्लस log ऑफ 5/6 माइनस log ऑफ 1/2, इसकी वैल्यू निकालो बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये तीनों एडिशन किया हुआ है, तो कैन आई राइट इट लाइक दिस बाय प्रोडक्ट लॉ, 3/4 इंटू 4/5 इंटू 5/6 माइनस log ऑफ हाफ, चलेगा क्या? यस, log ऑफ m इंटू log ऑफ n इंटू log ऑफ o इज इक्वल टू log ऑफ m इंटू n इंटू o, ठीक है क्या? ये 4 से 4 कटा, 5 से 5 कटा, 3 1s are 3 2s are, log ऑफ हाफ माइनस log ऑफ हाफ इज 0। अरे एनीथिंग माइनस एनीथिंग इज 0 ना, a माइनस a 0, x माइनस x 0, यस। सो log ऑफ हाफ माइनस log ऑफ हाफ इज 0, करेक्ट। या अगर लॉ से सॉल्व करना है तो लॉ से भी कर सकते हो। देखो log ऑफ हाफ, यस, डिवाइडेड बाय हाफ विच इज नथिंग बट log 1, log 1 इज 0, ऐसे भी कर सकते हो। तो log हाफ माइनस log हाफ इज 0, या अगर रूल लगा के करना है लॉस तो ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर है ना? चलो एक लास्ट लेता हूं ऐसे टाइप का अभी, 2 log 6 माइनस 2 log 3 प्लस half of log 625. Find the value of this. Evaluate. Yes. So चलो log of 6 का स्क्वायर ये इधर माइनस log of 3 का स्क्वायर ये इधर पावर लॉ प्लस log of 625 raised to half ये इधर, which is nothing but log of 36 minus log of 9 plus log of 25. 625 is the square of 25, तो 625 raised to half कितना होगा? 25। इसको देखो, ये होगा log of 36/9, हाँ कि नहीं, प्लस log 25। log m minus log n is log m by n, which is equal to log 4 plus log 25। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, log of 4 into 25 which is log of 100। बच्चों log 100 क्या होता है? 2। yes, या तो डायरेक्ट 2 लिख दो, नहीं तो I can do like this also, log 10 का स्क्वायर, yes or no, ये 2 इधर आ जाएगा तो 2 log 10, log 10 is 1, so 2 into 1 is 2। या तो log 100 is equal to 2 डायरेक्ट लिख दो तो भी चलेगा। क्लियर है ना? सो इवेल्युएट करना या सिंप्लीफाई करना इज लाइक दिस, इट इज डन इन दिस वे इन लॉगरिथम्स। तो काफी सिंपल भी है, बस अच्छे से तुमको सॉल्व करना है। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ता हूं, एक और टाइप लेता हूं आज, सिर्फ एक, यस, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। सॉल्व फॉर एक्स, सॉल्व फॉर एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। x की वैल्यू कैसे निकाली जाए इफ समथिंग इज गिवन। तो देखो पहला गिवन है log ऑफ x प्लस 2 प्लस log ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 2 log 3 प्लस log 5। बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब ध्यान से समझो,
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड गिवन है, तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं? कैन आई राइट इट लाइक दिस, लॉग ऑफ x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, लॉग ऑफ ये m हो गया, ये n हो गया, तो log of m प्लस log of n इज log of m इंटू n, करेक्ट, इज इक्वल टू ये हो जाएगा log of 3 का स्क्वायर प्लस log of 5, ये इधर आ जाएगा। सो दिस इज log of a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू log of 9 प्लस log of 5। मैं हर एक स्टेप बता रहा हूं, ठीक है। सो ये हो जाएगा log of x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू log of 9 इंटू 5, हाँ कि नहीं, log of 9 इंटू 5, क्लियर है ना। दिस विल गिव मी log of x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू log of 45। अब जब ऐसा आ जाता है अपने माइंड के अंदर, इन योर माइंड लॉग से लॉग कट गया, जब लॉग के साथ एक ब्रैकेट है पूरा और लॉग के साथ सिर्फ एक ब्रैकेट है पूरा, तब ये कर सकते हो, है ना। तुम बोलोगे सर यहीं पे कट कर सकता हो क्या ऐसे ऐसे? नो नो, इट इज कंप्लीटली रॉन्ग, तो ये नहीं करना। लॉग के साथ एक ब्रैकेट, इधर भी लॉग के साथ एक ब्रैकेट, तो लॉग को कट करना है अपने माइंड में, इन योर माइंड। अगर तुमने ऐसा स्ट्राइक कर दिया इसको, तो मैं यहीं पे 0 मार्क्स दे दूंगा, क्योंकि ये ऐसा कट नहीं होता है, ठीक है, कट नहीं होता है। तो लॉजिक क्या है इसका? देखो, log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू log ऑफ 45, ऐसा है। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एंटी लॉग, ये नहीं है तुम्हारे सिलेबस में, नहीं है तो टेंशन नहीं लेना। तो जैसे हम बोलते हैं ना टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो हम यहां बोलते हैं टेकिंग एंटीलॉग, एंटीलॉग, टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स। यस, तो जैसे ही एंटीलॉग आ गए, सारे लोग भाग गए, एक्स स्क्वायर माइनस 4 और इधर के भी लोग भाग गए 45। जैसे ही आंटी लोग आ गए, ये लोग और ये लोग भाग गए, ऐसा लॉजिक है उसका। अब लेकिन ये एंटी लॉग तुम्हारे सिलेबस में है नहीं। यस, तो तुमको क्या करना है अपने माइंड में, यस, इस स्टेप के बाद डायरेक्टली ये वाला स्टेप लिख देना है। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 45, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49, ये 4 इधर चला जाएगा, तो x क्या आएगा, प्लस और माइनस 7। यस, स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज 7, सो प्लस और माइनस 7, क्लियर है, पक्का। सो लेट्स डू वन मोर, डोंट वरी, करेंगे बहुत सारे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, log ऑफ 2x माइनस log ऑफ x माइनस 4 इज इक्वल टू 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ये देखो, log ऑफ m माइनस log ऑफ n इज इक्वल टू log ऑफ m बाय n, हाँ कि नहीं, इज इक्वल टू 1। अब प्रॉब्लम हो गई, x माइनस 4 है ना, सॉरी, यस, इसको n बना दिया, इसको m बना दिया, तो log ऑफ m बाय n। अब तो इधर तो लोग है ही नहीं, है ना, तो क्या करेंगे, तो इधर log लेके आओ, log of 2x upon x minus 4 is equal to log 10, 1 is equal to log 10, log 10 is equal to 1, तो इसलिए यहां log 10 लिखा, 1 की वैल्यू log 10 होती है। Now in your mind taking antilog on both sides, 2x upon x minus 4, antilog आए तो लोग भाग गए, is equal to 10। यस, इन योर माइंड ये लॉग से ये लॉग कट गया, कट नहीं करना ऐसे, ठीक है, तुमको बताने के लिए कर रहा हूं सर, ठीक है। नाउ सॉल्व दिस, 2x इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स माइनस 4, ये इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 10x
माइनस 40, हाँ कि नहीं, ये 10x इधर, 2x माइनस 10x इज माइनस 40, माइनस 8x इज माइनस 40, x इज इक्वल टू 5. सो x की वैल्यू आ गई 5. समझ में आया क्या किया है ना? तो बस ये दो ही ट्रिक्स है, एक तो एंटी लॉग समझना है तुमको, और दूसरा ये कि अगर प्योर नंबर आ गया, प्योर नंबर, तो उसको लॉग में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो दिस इज हाउ मे बी यू कैन कन्वर्ट इट इनटू लॉग. यस, चल एक दो और करवाता हूं सेम. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. log of 2x plus log of 6 is equal to 1 plus log of 12. Find the value of x. ठीक है, तो ये देखो क्या हो जाएगा, log of 2x into 6, हाँ कि नहीं, log m plus log n is equal to log of m into n. इसको बच्चों में लिखूंगा log 10 plus log 12 as it is, है ना. ये हो गया 12x, 2x into 6 is 12x, और ये हो जाएगा log of 10 into 12, log m plus log n is equal to log of m into n. अब log से log कटा, yes or no, taking anti-log on both sides, 12x is equal to 120, x is equal to 10. Done. क्लियर है, आ रही है बात, समझ आ रही है ना? चलो एक और करें. फाइंड द वैल्यू ऑफ x अगेन. ठीक है, log of 5x plus 6 plus log of 5x minus 6 is equal to 2 log 8. तो ये लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, log of ये m ये n, log of m plus log of n is log of m into n, करेक्ट, इज इक्वल टू log of 8 का स्क्वायर. चलेगा, है ना? अब देखो इधर भी log इधर भी log, log से log कटा, दिस इज a plus b into a minus b. yes or no? so 25x square minus 36 is equal to, इधर क्या बचा, 8 का स्क्वायर 64. so 25x square is equal to 64 plus 36, तो 36 इधर जाएगा, है ना, is equal to 100 upon 25. ये 25 इधर डिवाइड हो जाएगा, 100 upon 25. 64 plus 36 is 100. x is equal to plus or minus 2. खत्म है, सिंपल, एकदम सिंपल है ना? चलो एक लास्ट. Find the value of x. Log of 7x plus 3 minus log of x minus 3 is equal to 1. तो ये क्या हो जाएगा, देखो log of 7x plus 3 divided by x minus 3, हाँ कि नहीं, log of m minus log of n, प्लस है या माइनस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ कि नहीं. सो प्लस और माइनस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इज इक्वल टू log 10, 1 को लिखा log 10, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, log से log कटा, 7x plus 3 upon x minus 3 is equal to 10. yes, in your mind log से log कटा, बचा क्या, इधर ये ब्रैकेट और इधर 10. अब सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 7x plus 3, ये x minus 3 इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई होने, करेक्ट. 7x plus 3 is equal to 10x minus 30. ठीक है, ये 10x को इधर लाओ, 3 को उधर ले जाओ, 7x minus 10x is minus 30 minus 3, minus 3x is minus 33, x is equal to 11. minus 33 upon minus 3 is 11. So that is the value of x. Yes, so 3 type of questions we did today based on the laws. So your homework is exercise 7b, question number 1, question number 2, question number 3, all.
है ना. इट शुड नॉट टेक मोर देन 35 to 40 मिनट्स टू सॉल्व दिस. यस, दिखने में तुमको लगेगा अरे बाप रे इतने सारे क्वेश्चंस, है ना, क्योंकि इसमें 6-7 है, 6-7 है, इसमें भी 6-7 है. यस, एंड एक चैलेंज क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, चैलेंज. ट्राई करो सॉल्व करके बताओ. ठीक है गाइस, तुम्हारे जो चैलेंज क्वेश्चंस होते हैं ना, इसका भी मैं ट्रैक रखता हूँ कि किसने भेजा है, किसने नहीं भेजा है, किसने ट्राई किया है ना. सही करना इज लेस इंपॉर्टेंट, ट्राई करना इज मोर इंपॉर्टेंट, है ना. सो ट्राई करो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर मी. ठीक है, सो प्लीज डू इट एंड दिस इज योर होमवर्क. सेंड मी द डाउट्स बाय 10 AM टुमारो, बाय 10 AM टुमारो, so that I can solve your doubts बच्चों. प्लीज अंडरस्टैंड, है ना. प्लस मैं चेक भी कर लेता हूँ यार सही कर रहे हो कि नहीं. तुमने सॉल्व कर दिया, आंसर्स चेक करो. वापस बार बार रोज बोलता हूँ, चेक योर आंसर्स, नहीं तो तुमको समझ नहीं आएगा सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे. सी यू गाइस, टेक केयर, बाय.